we have to already proved sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, according to Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. Got it? Okay. If we divide in this relation, if you divide AC square on both sides, then we get 1 in LHS on dividing AC square on both sides. Okay, both sides. We get AC square divided upon AC square. इससे पहले हमने प्रूव किया था, तो यहाँ पे AC स्क्वायर ना होगा AC हो गया, तो वो मेरी मिस्टेक है। यहाँ पे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, इसे सही करिएगा इसको। AC स्क्वायर, ओके, AC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ओके, गॉट इट? AC स्क्वायर कैंसिल, दैट मीन्स ये 1 इज इक्वल टू AB बाई AC। इन दिस ट्राइंगल AB is perpendicular and AC is hypotenuse. That means perpendicular upon hypotenuse be sine theta and square. That means sin square theta plus BC upon AC. BC in this triangle, this is base and AC is hypotenuse. That means BC upon AC cos theta, cos square theta. Okay, cos theta is equal to base upon hypotenuse. Okay, got it? And sin theta be perpendicular upon hypotenuse. Got it? Okay. First, second be sec square theta is equal to 1 plus tan square थीटा। ओके, सेम प्रूफ, ये प्रूफ था यहाँ पे, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। भाई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, AC is hypotenuse. Okay, and sec theta will be hypotenuse upon base. Sec theta is equal to hypotenuse upon base, and tan theta be perpendicular upon base. Okay, got it? If you divide on both sides, BC square on dividing both sides
both sides BC square, we get AC square upon BC square is equal to AB square upon BC square plus BC square upon BC square. That means B square BC square से BC square क्या हो गया, cancel with, and AC hypotenuse upon base sec square theta is equal to AB perpendicular upon base. That means tan square theta plus 1. That means sec square theta is equal to 1 plus tan square theta. Got it? ये भी proof, and third already proved. Please write down. मिटा दें। अब हम लोग एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन करेंगे। First question is, in a triangle ABC, right angled at B, exercise 8.1 NCERT. Okay. First question B. In right triangle ABC. Okay. In right triangle ABC, right angled at B, right angled at B, okay, AB is equal to 24 centimeter, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, okay. तो determine पहला sin A into cosine, पहला फर्स्ट sin A into sin A cos A, sin A की वैल्यू और cos A की वैल्यू फाइंड करना है, एंड sin C cos C। सेकेंड नंबर पूछ रहा है sin C cos C, ओके। Firstly, write down solution, okay? पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, राइट डाउन करते हैं। पहले कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उस क्वेश्चन को ऐसे तरह से पढ़ें। पढ़ने के बाद ये देखिए क्या क्या उसमें दिया है, क्या क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, ओके। पहले फर्स्टली गिवन दैट, जो दिया हो उसे राइट डाउन करिए। क्या दिया है, राइट एंगल एट बी, दैट मीन्स एंगल बी क्या है 90 डिग्री, ओके। ए बी क्या है, ए बी दे दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना दिया है, तो बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, तो फर्स्ट में फाइंड करना है साइन ए।
साइन ए हमें फाइंड करना है, ओके, और कॉस ए भी फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्टली वी ड्रा ए राइट ट्रायंगल, ठीक है, क्या, ए बी सी, बिकॉज बी इज, एंगल बी क्या है 90 डिग्री, ओके, एंगल बी 90 डिग्री रखिएगा। बाकी आप फ्री हैं, या तो यहाँ पे सी रखिए या यहाँ पे रखिए, आप फ्री हैं, ठीक है। बट बी शुड बी 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री, ओके। दैट मीन्स ये क्या हुआ, हाइपोटेनस, ओके, गॉट इट, हाइपोटेनस, ओके। एंड एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ओके। बट फर्स्ट क्वेश्चन he asked sin A, find the value of sin and cos A, okay. So according to this angle, perpendicular will be BC, okay, and base be AB, okay, ठीक है। So firstly we find the value of AC because sin A will be perpendicular upon hypotenuse and cos A will be base upon hypotenuse, okay. According to Pythagoras theorem, okay, AC का स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। हाइपोटेनस क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, AB का स्क्वायर, ओके। AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। इन दिस क्वेश्चन BC is given, that means the value of BC is 7 centimeter, that means 7 का स्क्वायर, and plus AB is given, AB is equal to 24 का स्क्वायर, okay, got it। AC स्क्वायर is equal to 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर होगा 476, ओके। सॉरी 576 होता है, 576, ओके। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576, ओके। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625, therefore AC is equal to 25 सेंटीमीटर, सॉरी AC is equal to, ठीक है, AC is equal to 625, स्क्वायर रूट 625 हो जाएगा, हाँ, प्लस माइनस होता है, बट हाइपोटेनस क्या लेंथ है ना, लेंथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पे। तो AC क्या हो जाएगा, AC बराबर आ गया 25 क्या सेंटीमीटर, ओके। तो ये AC क्या हो गया, 25 हो गया, ओके, 25। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट में साइन ए, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा, साइन ए होता क्या है, तो परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर ए के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर BC एंड हाइपोटेनस सबके लिए क्या होगा, AC ही होगा। तो BC का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ BC इज 7 एंड द वैल्यू ऑफ AC 25, that means we got the value of sin A. Sin A is equal to 7/25, okay.
इन दिस क्वेश्चन कॉस ए की वैल्यू भी क्या है, फाइंड करनी है। तो कॉस ए होगा बेस अपान क्या, तो हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, तो बेस है ए बी अकॉर्डिंग टू एंगल ए। बेस will be AB and hypotenuse AC AB is 24 and AB क्या है 24 है, और ये क्या है तो 7 है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सेंटीमीटर, ये भी क्या आ गया सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर 24/25। राइट डाउन करिए। ओके, हटा दे। ये मिटा दे रहा हूं। ओके, इतना सेकेंड नंबर के लिए। फॉर सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन यही है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट पे पूछ रहा है साइन सी एंड कॉस सी का वैल्यू। ओके, एक साइन सी, ओके साइन सी। तो साइन सी जब पूछ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सी है ना, ये जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइन सी के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए हमें फाइंड हो गया है। क्वेश्चन यही रहेगा, ये मिटा दे रहा हूँ। ओके, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब इसमें क्या फाइंड करना है, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, ये था ना ए बी कितना दिया 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और हम फाइंड किए क्या 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनस। अब ये एंगल सी पूछ, दैट मीन्स साइन सी, दैट मीन्स अब अकॉर्डिंग टू एंगल सी परपेंडिकुलर विल बी ए बी। ओके, परपेंडिकुलर विल बी ए बी एंड बेस बी सी। ओके, ये बेस हो जाएगा। एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस बी सी होगा। तो साइन सी दैट मीन साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी ना, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा ए सी। ए बी के वैल्यू क्या है 24 एंड ए सी का वैल्यू क्या है 25। ओके, कॉस सी, तो कॉस सी इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो बेस क्या है, बेस होगा बी सी। ओके, और हाइपोटेनस ए सी। तो बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7, एंड ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस 25। हाँ, अब कोई पूछे इसके यूनिट क्या, दैट मीन्स ये एंगल सी मैंने बताया था ना कि कॉस थीटा, दैट मीन्स ये थीटा क्या होता है रियल नंबर ना, रियल नंबर। दैट मीन्स सेंटीमीटर दोनों कट दैट मीन्स कोई यूनिट नहीं होगा, ये कांस्टेंट, दैट मीन्स ये रियल नंबर है।
0.25. Okay, write down please. Second question. Second question is we have to find tan p minus cot r. tan p minus cot r. हमें tan p और cot r की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, और फिगर दिया है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल ऐसे दिया है. ओके, 12, 13, 5, 12, 13, ये है P Q R. ओके, ट्राइंगल P Q R में P Q दिया है 12, P R दिया है 13 और ये नहीं दिया है Q R. ओके, और tan P और cot R की वैल्यू फाइंड करनी है. पहले तो क्वेश्चन में दिया है tan p माइनस कॉट और tan p के लिए हमें क्या चाहिए. तो tan जब भी आए तो डायरेक्ट मीन्स हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए. तो इन दिस ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल P परपेंडिकुलर B QR. So we necessary find the value of QR. Okay, so firstly we find the value of QR in this triangle. Okay, solution. Okay, according to Pythagoras theorem. Okay, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ओके, हाइपोटेनस भी बिकॉज एंगल Q इज 90 डिग्री, सो हाइपोटेनस भी PR. हाइपोटेनस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड tan P माइनस cot R. सो वी ट्रैक परपेंडिकुलर QR or TQ were free, but in the case of tan P perpendicular be QR, and in the case of cot R perpendicular be TQ. Okay, PR का स्क्वायर is equal to perpendicular, that means PQ का स्क्वायर plus QR का स्क्वायर. We have to find the value of QR, so PR put the value of PR, so 13 का स्क्वायर is equal to PQ भी 12 का स्क्वायर प्लस QR. 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर. ओके, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर लाएंगे. ओके, 144 प्लस QR का स्क्वायर. ओके, गॉट इट. 169 प्लस 144 को लेफ्ट साइड लाएंगे, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. 144 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर. सो देयरफॉर 25 वी गेट 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर. देयरफॉर स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू QR. सो देयरफॉर QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. ओके, गॉट इट.
ठीक है, ये हमें क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें tan p माइनस कॉट r का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कॉट p बराबर tan p tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेस। In the case of angle P, perpendicular is QR upon base PQ minus in the case of cot R according to angle R, perpendicular will be PQ upon base will be QR. Okay, the QR upon PQ, QR 5 and PQ 12 minus PQ 12 upon QR 5. Okay, LCM will be 16. 12 5 is 16, 5 5 is 25 minus 5 से डिवाइड करिए 12 12 is 144. That means minus 14 में से 5 गया 9 और 30 में से 3 में से 2 गया 1 डिवाइड बाई 60। tan p minus cot r, tan p minus cot r, 1 minute, sorry, tan p minus cot r 5, tan p perpendicular upon pq 12, okay, and cot r sorry cot r है, sorry I think 10 r, sorry cot r दिया है, this is my mistake। tan p qr upon pq minus cot r, cot theta भी base upon perpendicular, so according to this angle r, base will be qr minus perpendicular 12, okay, 12 sorry perpendicular pq, okay, and for this relation that means यहीं से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके, बट हमें वैल्यू पुट करके करना है, ओके, तो वी पुट द वैल्यू ऑफ QR PQ, ओके, तो QR क्या है, QR 5, PQ 12 माइनस 5 अपॉन 12, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, दैट मीन्स 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। मुझे लगा कि यहाँ पे 10 दिया है, सॉरी cot थीटा क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड tan थीटा क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये होते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, राइट डाउन। हाँ, जहाँ पे जिस फॉर्मूले का यूज हो उसको साइड में उसको राइट डाउन करते हैं, ओके, ये एक लिखने का मेथड होता है। अब जहाँ पे भी कोई भी मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो कोई भी एक्सरसाइज हो, यदि कोई भी फॉर्मूला यूज होता हो तो या तो उसको बीच में लिखिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए ऐसे, या उसको साइड में कहीं लिखिए कि जब एग्जामिनर कॉपी आपकी चेक करे तो उसको लगे कि ये जो स्टूडेंट से इसने अच्छे से क्या किया है, प्रिपेयर किया है, पढ़ा है, ठीक है, तो राइट डाउन प्लीज।
ओके गॉट इट, मिटा दें। अभी मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, इसलिए मैं एनसीईआरटी से करा रहा हूँ। ओके, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आर डी शर्मा से, आर डी शर्मा की बुक से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, थर्ड नंबर इज इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, ओके, तो फाइंड कैलकुलेट cos a and tan a. If sin is equal to 3/4, calculate cos a tan a. Okay, cos a tan a. साइन a दिया है और हमें क्या फाइंड करना है, cos a और tan a फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट पहले ही ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे कि जब भी ऐसा गिवन हो, जब भी ऐसा टी रेशियो में से किसी भी एक रेशियो का वैल्यू फाइंड हो ऐसे, तो हम उसे लिखेंगे गिवन डैट, जो भी दिया है उसको लिखिए गिवन डैट, क्या कि साइन ए इज इक्वल टू क्या है 3/4। ये हो गया सॉल्यूशन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स दिस इज योर राइट ट्राइंगल। ओके, ए बी सी, यू आर फ्री, any angle be 90 degree, that means angle B is 90 degree in this triangle. Okay, angle A, angle B, in this according to angle A, perpendicular B, BC, hypotenuse B, AC. Okay, so sin A is equal to 3/4, that means perpendicular is given and hypotenuse is given. Okay, we know that कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, दैट मीन्स वी हैव टू सॉरी परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनस क्या दिया है 4. ओके, वी हैव टू फाइंड ए बी बिकॉज वी हैव टू फाइंड cos and tan A. cos A is equal to cos theta is equal to base upon hypotenuse and tan theta is equal to perpendicular upon base. So we have to necessary to find the value of AB because AB is base. The hypotenuse का square, that means 4 का square is equal to perpendicular का square 3 का square plus base we have to find. The base is AB का square. 4 का square 16 is equal to 9 plus AB square. 16 minus 9 is equal to AB square. AB square 16 minus 7, that means under 7 is equal to AB square, and AB is under root with 7 is equal to AB. Okay, so we have to find the value of AB. AB बराबर under root 7. Okay, we have to find the value of cos A. So cos A is equal to हो जाए, cos A will be base AB upon hypotenuse. लिख लीजिए base upon hypotenuse. So base be AB and hypotenuse AC. AB is under root में 7 और AC क्या है 4. Second, tan A is equal to perpendicular BC upon base. Okay, the perpendicular be in this triangle, perpendicular be BC, okay, upon base
ए बी, ओके। तो tan A इज इक्वल टू विल बी 3/√7, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्लीज राइट डाउन। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इसी टाइप से, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के हैं सभी ऐसे ही होंगे। हो सकता है कभी सेक दे दे और आपको अदर टी रेशियो फाइंड करना हो, एक भी कोई टी रेशियो दिया हो तो उसकी सहायता से बाकी हम पांचों टी रेशियो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जब वैल्यू पढ़ेंगे, डैट मीन्स सपोज करिए साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे साइन ए इक्वल 3/4 दिया है, यहाँ पे तो किसी भी एंगल का होता होगा, बट यहाँ पे तो हम जनरली नहीं मालूम है कि 0 का होता है, 30 का होता है, 45 का होता है, या 60 का होता है, या 90 का होता है, 120 का होता है, ये हमें नहीं मालूम। हाँ, यदि दिया होता कि साइन ए इज इक्वल टू 1/2, ये 1/2 साइन ए किसी न किसी एंगल का मान होता है, वैल्यू वो भी किसका 30 डिग्री का होता है, तो यहीं से ए क्या फाइंड कर लेंगे, ए इक्वल टू 30 डिग्री। जब ए 30 डिग्री हो जाएगा तो सी बचेगा कितना डिग्री, 60 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल विल बी 180 डिग्री, तब एंगल बी 90 डिग्री, so therefore the sum of A and C be 90 degree, and one of them angle A is equal to 30, then angle C will be 60 degree. Okay, got it? बिठा दें। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। 6 से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के सभी इजी हैं, आप लोग करिएगा। कहा है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए कॉस बी, अच्छा दिया है कि एंगल ए एंड एंगल बी क्या हो, एक्यूट हो, एक्यूट एंगल, ओके। एंड कॉस ए बराबर कॉस बी, ये भी दिया है, तो प्रूव करना है, तो प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ओके। सपोज इन ट्राइंगल ABC एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, so therefore angle C will be 90 डिग्री, ओके। जब एंगल ए और एंगल बी क्या हो, एक्यूट हो, एंगल ए एंगल बी और ये एंगल क्या होगा तब C, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी क्या दिया है, एक्यूट दिया है, तो एंगल C तब 90 डिग्री होगा 100%, ओके। और दिया है cos A इक्वल टू cos B, हमें प्रूफ करना है ये, तो जो भी दिया हो राइट डाउन करिए, गिवन दैट कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंड क्या दिया, एंड cos A इज इक्वल टू दिया है cos B, ओके। cos A इज इक्वल टू cos B, तो cos A इज इक्वल टू cos B, cos A इन दिस ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल A, cos A, तो cos A बेस, तो AC बेस अपॉन हाइपोटेनस AB, ओके, इज इक्वल टू cos B अकॉर्डिंग टू एंगल B, बेस B BC अपॉन हाइपोटेनस AB से भी क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो AC इज इक्वल टू BC, हाँ यहाँ पे लिए cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। क्लास 9 में प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी ट्राइंगल में यदि दो साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो
तो उनके सामने का एंगल भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो जब दो साइड ए सी और बी सी, दोनों साइड क्या है, ए सी ए और बी सी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, दैट मीन इनके सामने का जो भी फ्रंट एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो ए सी के सामने ए सी है ना, ए सी के सामने कौन सा एंगल है, बी, एंगल बी इज इक्वल टू हुआ बी सी के सामने कौन सा एंगल, एंगल बी सी, ये साइड बी सी है ना, बी सी के सामने एंगल ए दैट मीन्स हम इसे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी भी क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो ये प्रूव हुआ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।